Om Shanti. Imbibe the virtues of sweetness and humility to become great. With sweet drishti, change the world. For a few moments, give sweet drishti to a soul, or just speak a few sweet words, and you will make that soul full for all time. Those few moments of sweet drishti or sweet words will change that soul's world. A few sweet words will become a means to bring about permanent transformation. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avekti Parivar. Today is day 6. Imbibe the virtues of sweetness and humility to become great. With sweet drishti, change the world. Pass with honor. Jumping to worst case conclusions. Power of faith. Sweet, sweet child, Baba, the bestower of happiness, cannot see even a little trace of sorrow in you. So now we will listen to Mohini Didi, and then when we will have chit chat, just to let you all know that today's chit chat will be in Hindi, so keep your translation available. So now we will listen to Didi.
Om Shanti. Ratan Mohinderadi was explaining about remembrance. And she said that Baba explains us and defines for us what is to be incorporeal. Our soul is incorporeal. Now, on one side, Baba says, there can be nothing in the world which doesn't have name and form. But when it comes to incorporeal also has a form, right? Whether it is point of light, but point is also. But generally we explain that incorporeal means no corporeal form. It has form, because that's why we say, soul is point of light. So point is a form, but it's not corporeal. I remember when in the beginning we used to give course, then we always used to say incorporeal but no corporeal form. But doesn't mean incorporeal means there is nothing, right? There is point of light, right? Because we say formless, physical formless, but point is still there, point of light. So the way she was explaining was that how natural remembrance is when you practice that I am incorporeal soul. Within a second, there is connection with Baba. I am incorporeal. Baba is also incorporeal, Nirakar. So as with Sakar or physical, connection takes a minute. Especially Baba gives example of Lokik father. How connection, once we know so and so is my Lokik father, the yoga, its connection is there. Same as I am incorporeal and my father is also incorporeal. It should connect you, but also brings the experience of relationship of father with incorporeal Baba. So it's like, these things are very important, but very subtle. And for that, one of the main practice is to have power of concentration. They say these days people have very little concentration because within a second their attention is diverted. Otherwise, if you have attention, whatever is happening, you won't even notice it. But our habit, we notice everything, right? Why we notice it? Because attention is wandering. So there is lack of concentration. They say there used to be concentration of people for 7 minutes, and now is 1 or 2 minutes. That means if there is an advertisement, they have done, they do research, and they say anything which is more than a minute, people lose their attention. That means the concentration is so for the little time, But Baba says, I am the ocean, you should merge in the ocean of love. Merge. He's not saying only attention. Merge. That means you are not aware of anything else. That stage is needed. That you are not aware of your surroundings or anything. Only what you feel is love, is peace, the atmosphere. Vibrations you experience, not physical environment. So I think that especially when we listen to Murli, we listen to knowledge, sit in Baba's remembrance, because Brahma Baba taught us,
we used to sit in front, but our eyes never went like here or there. No, Baba used to just look at us. We will look at Baba. So these days, that's not there. No. Very quickly, our head moves here, head moves here. But why use, for me, if I get a minute, I churn, try to experience what Baba is saying. But these days, why you have to look who is coming from door? You need to know, but attention goes, yes or no? Yes. Why? So that is where we can check little bit our thoughts, our time goes waste. Right? The time where you can be in the experience, if something happened, it's all right. What I heard 1 minute before, I can think about that. I can churn. But that's like one who is subtle effort maker, one who is fast effort maker, will not allow that attention to be diverted. So you all should practice this. You understand? Whosoever, whatever is happening around me shouldn't draw my attention. And then you see that your subtle energy or subtle intel, everything becomes very subtle. Because everyone is pure. In purity, there should be good concentration. But little mistake we make is allow our attention to be diverted, to go everywhere where you don't need it. So then brain absorbs that vibration. Brain absorbs, and that becomes like our habit or whatever. So pay attention in a way that is totally, I am listening, and if there is an interruption for a minute or two, I can churn. I get a time to churn, but instead our attention is diverted. So you lost your time. When people say I don't have time for remembrance, so what we say, we don't believe it. It's waste of time. Your attention must be going somewhere else. Otherwise, within a minute, you have half a minute. Within 3 minutes, you might have a minute where you can churn, you can practice. It's not every time you will get half an hour. Even for a minute, that I notice is not very common in effort makers. And that is where our efforts are not subtle and quality and consistent. Consistent is only possible if there is nature of full attention on whether and I'm doing anything or I'm listening to Baba, full attention. And that's what, when we came to Baba, so Baba knew who are good students, so he will make us sit in the front row. And Baba will notice that all the time, 45 minutes, our eyes didn't go anywhere. Our eyes were only on Baba. So while listening knowledge, while listening Murli, 100% attention. You all should practice this today when you go for Murli. Not just here, there, attention goes. Then what goes inside is not much. Even we are listening, but we are not listening fully. So if we bring that change, bring that quality in our efforts, it's not fast, it's quality. Quality of remembrance. You can remember Baba, sit for 1 hour. And sometimes we sit even for 5 minutes.
so intense, so loving, so much experience. So that quality of efforts, if you all make effort to wake up morning or do whatever you're doing, why not we also make our intellect very subtle intellect, divine intellect, and total attention. So see if you can have this quality of total focus, total attention, then you can absorb everything. There are two words. One is called inculcation, that is dharana. Other is absorb, how much you absorb. And whatever you absorb then becomes your, like you could see that that's your power, that's your experience, right? So Baba is saying today, Baba says that with sweet drishti and sweet words, world can be changed. That means internally, whatever is going on, world can change. So Baba says for few moments, give sweet drishti to a soul or just speak few sweet words and you will make that soul full all the time. So Baba says that those Baba says few moments of sweet drishti or sweet words that can change the world of that soul. A few sweet words will become the means to bring about permanent transformation. It's so interesting because whatever Baba says, if I really absorb it, understand, and then practice or do, then that attainment should be experienced. Yes, when I did it, I got this attainment, I got this power, or I got this experience. Not just we listen and more points maybe. No, it should change, bring that change from gross physical to subtle. And that's what we are becoming is angels. So what angels are? Very subtle. Even wherever they are, but they are in there. And that subtlety, which we all can have because there is purity, but not subtlety. Because of lack of concentration. Even if your sitting was 30, but you can be in isolation, solitude. Ekant is not that I go somewhere else. I can sit anywhere, but I can be in solitude. That's the practice which we all have to do. Right? Om Shanti. ओम शांति दीदी। Om Shanti. दीदी बहुत अच्छा लगता है जब आपसे दृष्टि लेते हैं, रियली सोल कॉन्शियसनेस आ जाती है स्वतः ही। और आज आपने एक बात बहुत अच्छी स्पष्ट की है कि दृष्टि ऐसी दे ही अभिमानी हो कि उसमें अटैचमेंट या कोई और संस्कारों का रूप न हो।
लेकिन नॉर्मल कोई दृष्टि या बहुत मधुर होते है तो अटैचमेंट का चांस आ जाता है। पर हम आपके केस में अगर देखते हैं तो आपसे प्यार बहुत है, सीखते बहुत है, लेकिन अटैचमेंट वाला पार्ट नहीं आता है। तो आपने ये इतनी ऊंची स्थिति किस बात से हासिल की है? अंदर क्या आपने खास पुरुषार्थ किया है जिससे हमें वो रूप आप दिखाई देते हैं जो आज आप समझा रहे थे? हिंदी में बोलो। परिचय दो। ओम शांति। बीके अनीता, चंडीगढ़ से, पंजाब से, और 79 से बाबा की बच्ची बनी हूँ। और अभी जब से दीदी सीट पर आए हैं, दीदी से बहुत सीख रहे हैं और आज चिट चैट कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं। एवरीवन प्लीज get your translation. The chit chat will be in Hindi. So make sure you have translation selected, whichever language you would like to have. सबसे पहले तो जो कुछ हम सुन रहे हैं उसमें पूरी एकाग्रता चाहिए। और मुझे वो दिन याद आते हैं जब ब्रह्मा बाबा ने हम लोगों पर अटेंशन दे के 45 मिनट 1 घंटा हम लोग जब मुरली सुनते थे तो जैसे बाबा का एक एक शब्द, देखो बाबा के महावाक्य कोई शब्द नहीं है, उसमें सत्यता है, पवित्रता है, भगवान की जो गुण है वो सारे एक एक शब्द में समाये हुए हैं। हम लोग शब्दों कैसे सुनते हैं, जैसे औरों की बात सुनते हैं, बाबा की भी सुन ली। इसलिए कई कहते हैं वो आज ये पॉइंट, आज तो नया पॉइंट नहीं था, आज तो ये, तो हर एक चीज जैसे स्थूल बुद्धि। और हम कहते हैं बाबा क्या चाहता है, सूक्ष्म बुद्धि। जैसे कैसे पता चले कि मेरी दैही अभिमानी स्थिति है या मेरी आत्मिक दृष्टि, वो आपको एकाग्रता से पता चलेगी। तो बाबा ने हम लोगों को सिखाया जब बाबा के पास आए कि सुनो मुरली तो ऐसे सुनो, जैसे बाबा उदाहरण देते हैं चातरक का, कि वो बारिश की एक बूंद के लिए, चातरक मतलब इतनी इच्छा रख के अपनी पीक को क्या बोलते हैं, चोंच को खोल के रखता है कि अभी मेरे। तो ऐसे ही बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं ना, शायद शुरू में होता हो, पर आजकल हमने देखा है कि मुरली सुनते हैं, फोन भी उठा लेते हैं, चाय कप भी पी लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, उधर कितनी मुरली जाएगी अंदर। चाहे वो मुरली पढ़ो, चाहे वो मुरली सुनो, चाहे वो मुरली फिर लिखते हैं हम लोग ना, तो अंदर में जो उसकी गहराई है, और रोज वही पॉइंट सुनेंगे ना, पर समझ अलग आती है क्योंकि स्थिति अलग है ना। तो अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि बनाओ, तो उससे क्या होगा, ज्ञान की जो गहराई है, महीनता है, ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान की जो शक्ति है, वो जैसे कि अनुभव होगी, उसके आधार पर फिर स्थिति बनती जाती है। बाबा की बात मैंने समझी, न केवल सुनी, सुनी तो है लेकिन समझी कि नहीं। अगर हमने समझी तो बुद्धि का सोच बदल जाता है। सिर्फ सुनी तो नहीं कुछ होता। कई लोग मुरली सुनने के 2 मिनट बाद ऐसी बात करते हैं जैसे कुछ सुना ही नहीं, या और बातों में, या मूड
भाई अभी अभी तो मुरली सुनी, कुछ तो परिवर्तन देखना चाहिए। नहीं, 1 घंटा सुनते हैं तो क्योंकि अटेंशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है। तो अभी सभी अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। तेज भागने की उसकी तीव्र पुरुषार्थ, मैंने कहा पुरुषार्थ सूक्ष्म चाहिए, तीव्र से भी ज्यादा सूक्ष्म चाहिए। अगर सूक्ष्म होगा तो तीव्र भी होगा, नहीं अगर स्थूल होगा तो भारीपन होगा ना, तो तेज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अच्छा है, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और ध्यान देंगे इस बात पर कि स्नेह मूर्त भी रहना है पर न्यारे प्यारे भी रहना है ना। ये बहुत अच्छा। हमारे बाबा खुद ही कहते थे, जब बच्चे जा रहे होते थे, बाबा आप हमको याद करना। तो कहता था बाबा, तो कहता है मुझे याद करो, अभी मैं तुमको याद करूं या बाबा को। फिर एंड में इसलिए बाबा ने कहना शुरू कर दिया, न याद करो न बिसरो। हाँ, मैं याद भी नहीं करूंगा तुमको, भूलूंगा भी नहीं। तो ये भी एक टाइम पर ऐसे ही बात होती है ना, टाइम पर अगर कोई भी बात ठीक से याद आए तो यूजफुल है, आगे पीछे याद आती रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो ये सारा बुद्धि का सूक्ष्म होना, देखो पवित्र हैं, सभी ब्रह्मचारी हैं, पवित्र हैं, बचपन से पवित्र हैं, पर उस पवित्रता की शक्ति का यूज क्या? यूज तो यही होना चाहिए ना कि बुद्धि मन एकदम स्वच्छ है, एकदम सूक्ष्म है, राइट। तो मुझे लगता है कि बाबा ने हमको शुरू शुरू में आए तो यही सिखाया, पर ये क्वालिटी हमें एज ए स्टूडेंट होनी भी चाहिए। किसी को भी 100 मार्क्स लेनी है, 90 लेनी है, तो एकाग्रता तो चाहिए। ठीक है। दीदी आपने जो कहा, एकाग्रता के लिए अटेंशन बहुत अच्छा चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। पर कई हैं जो अटेंशन बना ही नहीं पाते हैं, तो कहते हैं हम बहुत जोर लगाते हैं फिर भी डाइवर्ट हो जाता है। तो शायद उनको कोई गहरे प्यार की कमी है, या एकाग्रता क्यों नहीं बनती है। आजकल ये वाले सीन थोड़े ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। देखिए आजकल बुद्धि बहुत अच्छी है लोगों की, नहीं, छोटी छोटी एज में इतने होशियार होते हैं, चाहे आईटी में, चाहे कोई भी बात सीखने में, एकदम बुद्धि अच्छी है। लेकिन बुद्धि, देखिए जहां पर लगन होती है ना, नहीं बाबा मिसाल देता है कि संबंध का प्यार होता है, जब पता लगता है कि मेरा ये संबंध है तो उसकी याद आती है, राइट। तो मैं ये कहती हूँ कि बाबा के साथ एकाग्रता में संबंध कौन कह रहा है, लेकिन आजकल एक संस्कार है कि आपकी बात पूरी सुनेंगे ही नहीं, आप 3 बार 4 बार बोलेंगे ना, वो अपनी ही सोचते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ही करनी है। ये बहुत है। मैं कहती हूँ भाई बात तो सुनो ना। वो अपने मन की सुनते हैं, मन मौजी बहुत है कि जो मैं मन में सोचूं ठीक है। और हम लोग जो थे मन मौजी नहीं है। बाबा कह रहे हैं ना, अगर मुझे बाबा से प्यार लेना है, प्राप्ति करनी है, और बाबा का मेरे प्रति अटेंशन हो, तो उसके लिए हमको बाबा जो कहता है वो हमें करना है। नहीं, मैंने आपको कई बार बताया कि बाबा से कुछ पूछने जाते थे ना, तो कईयों को बाबा जवाब ही नहीं देते। बाबा ने कहा तुम पूछ के आए हो ना 4 लोगों से। हम लोग जाते थे, बाबा बहुत इंटरेस्ट से सुनेगा, बताएगा, क्योंकि बाबा को पता है हम उनके बाबा के पास पहले जाते हैं। अभी भी आप जीवन में देखो, कोई भी बात है, उससे राय ले ली, उससे ले ली। जैसे भक्ति में सब डॉक्टरों के पास गए, एंड में भगवान को कहते हैं एक आप ही तो हो। तो भगवान भी कहता है पहले तो आए नहीं, जब निराश हो जाते हो तो मेरे पास। ये संस्कार बने हुए,
पहले बाबा के, मैं हमेशा देखती हूँ कोई भी बात आई तो कहाँ बुद्धि गई, बाबा के पास गई या व्यक्ति की तरफ गई, साधनों की तरफ गई। इससे अपनी चेकिंग हो जाती है अंदर में ठीक से, राइट। तो इसी को अटेंशन कहें, या हमारी एकाग्रता और अटेंशन ऐसे नहीं है कि मोमबत्ती रख के योग कर रहे हैं और सारी एकाग्रता हमारी मोमबत्ती पर है। लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, मोमबत्ती रख के फिर कहते हैं अभी हमको, पर हमारी तो चैतन्य परमात्मा के साथ बुद्धि योग है ना। तो मैं समझती हूँ कि बुद्धि अच्छी है, थोड़े मन को संभालना जरूरी। मन के सोचने के तरीके, मन के सोचने का जो स्वभाव है उसको थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। वही आपने बताया, गहरा संबंध चाहिए, दिल की लगन बाबा के साथ चाहिए। तो दीदी एक बात और ध्यान में आती है, हम मधुरता पर रोज बातचीत कर रहे हैं, पर कहते हैं सच कड़वा होता है, अच्छा। सच मीठा नहीं होता है। और व्यवहार में अगर आप निमित्त हैं और आपके सामने कोई ऐसे आए हैं जिनको कोई शिक्षा भी देनी है, उसकी कमी का एहसास भी कराना है और हमको मधुरता भी धारण करनी है, पर सामने वाले को जब अपनी कमी सुनाई पड़ती है या एक्सेप्ट करनी पड़ती है, उसको मीठा नहीं लगता है। तो कैसे मीठा भी महसूस कराएं और उसको रियलाइज भी कराएं। देखो, समय बदलता है नहीं, तो जैसा जैसा बाहर का वातावरण होता है ना, वैसा मनुष्य का स्वभाव होता है। बाबा, दीदी हमारी ये कहती थी कि करेक्शन मत दो, उसका कनेक्शन बनाओ। खुद के लिए भी कहती थी कि स्वयं का भी कमजोरियों को नहीं देखते रहो, पर कनेक्शन बढ़ाओ। तो हम भी इस तरह से उस बात को दें कि उस आत्मा का कनेक्शन बाबा से बढ़े। शिक्षा देने का तो समय चला गया। शिक्षा तो अब हमारी दादी तो हमें चलते फिरते उठते बैठते कहती थी ये राइट नहीं है, ये श्रीमत नहीं है, ये दान। हम खुश होते थे कि 16 कला संपूर्ण बनना है तो दादी सिखाएंगी ना हमको। तो आज वो बुद्धि का सब है ना, तो वो शिक्षा की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप एक एग्जाम्पल रहो। कई है हमारे पास, शिक्षा नहीं सुनते हैं पर देखते तो है ना। जैसे मेरा बोल क्या है, हमारे पास कई कन्याएं कहती हैं हमने आपसे बोलना सीखा। मैंने कहा क्या सीखा, मतलब कैसे रिस्पेक्ट से बोलो, कौन से शब्द बोलो। तो यंग आते हैं, उनको जो चाहिए जैसे, तो उससे क्या हो जाता है कि एक स्थूल लगता है ना। बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल रहने से भी बहुत लोग सीखते हैं। तो मैं तो ऐसे ही समझती हूँ कि कहने से भी, जैसे कोई परिस्थिति आपने बहुत धैर्यता रखी तो देखते तो है ना। तो गुण का जो दान है आजकल, वो ज्यादा मदद करता है शिक्षा के दान से, कि हम वो एग्जाम्पल रहें और सीख जाते हैं। ये तो मैंने देखा है। और नहीं सीखना होता है तो भी बाबा कहता था हर एक का पार्ट है, नहीं। पर जरूरी नहीं कि सच करवा लगता है। आप उसको, जैसे बाबा कहता है ना, नहीं, पहले कुनीन आती थी इंडिया में, अभी पता नहीं आती है कि नहीं। एक गोली होती थी बहुत कड़वी, शुगर उस कोटेड। फिर उस पर शुगर लगाते, जैसे बच्चे भी खाए ना तो मीठा लगे, अंदर में एक बहुत कड़वी। तो इसलिए तो कहता है बाबा मीठा बोलो, है बात कड़वी कहो या, लेकिन उसके अंदर ऊपर मिठास हो। तो मीठे बोल मीठी दृष्टि, अब तो वही काम करेगी, राइट। कई बार कहते हैं कि तो आप बात को बदलना पड़ सकता है, तो बदलें भी नहीं तो भी मीठा लगे तो
उसको सेम रूप में अगर कहें तो पिंच होने का चांस तो बहुत होता है ना। है किसी को अनुभव? भूमि बहन, आपको क्या अनुभव है? हमने तो ये अनुभव किया है कि अगर मेरा दिल साफ है, भावना मेरी बहुत शुद्ध है आत्मा के प्रति, तो शायद उस समय थोड़ा लगे भी, पर थोड़े समय के बाद वो ठीक भी हो जाता है। कुछ सीखने को मिलता है। मिलता है दीदी, वो रियलाइज तो करते हैं। जब उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है ना, तो वो याद जरूर करते हैं कि ये मुझे कहा गया था या ऐसा मैंने देखा था। ऐसा मुझे कईयों ने सुनाया भी है तो। हम्म, एक बात और पूछूं दीदी? पूछिए। ये जो अभी बात चली थी कि दृष्टि मीठी हो, उसमें देह अभिमान मिक्स ना हो, कोई पुराने संस्कार मिक्स ना हो, सामने वाले की सृष्टि बदल जाएगी। पर कई बार कहते हैं कि माया जब आती है, ईश्वरीय रूप भी धारण करके आती है। तो ये ईश्वरीय रूप वाली माया क्या होती है? क्योंकि आजकल मीठा व्यवहार के नाम पर कहीं एक दो में अटैचमेंट होना, या फिर किसी को अच्छा किसी को बुरा समझना, इसके चांस रहते हैं। तो ईश्वरीय रूप की माया को कैसे परख सकते हैं? माया प्यार भी करती है, थप्पड़ भी मारती है। राइट। दोनों तरह से आती है। मतलब दुख होगा, अपमान महसूस होगा, डगमग अवस्था होगी, अपनी कमजोरियां जो हैं वो बढ़ती हैं, तो पता तो लगता है ना कि माया मिक्स हो रही है। तो माया का ईश्वरी रूप क्या है? रावण ने क्या किया? वेश बदला ना। हम्म, अभी देखो, सीता का भी निश्चय हिल गया। अभी एक राक्षस की आवाज है, वो कहती है रामचंद्र को मदद चाहिए, तुम जाओ लक्ष्मण। उसको इतना भी निश्चय नहीं था भाई, अगर भगवान है तो तो मदद नहीं उसको तो मांगेगा। कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे भी कल परसों भी हमारे यहाँ तो देखो बड़ा यज्ञ, बहुत बातें होती हैं। तो आते हैं मेरे को, कहते हैं कि आपकी ब्लेसिंग होगी तो अच्छा हो जाएगा। मेरे को जब वो बात शुरू होती है ना, उसी समय होता है कि अब इसका ये रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो वो एक तरह से एकदम क्लियर आ जाता है कि ये बात यहाँ तक पहुंचेगी। पर मैं शांत भी रहती हूँ, कुछ नहीं। ना योग योग बल बाबा के यज्ञ में जो जाने अनजाने बहुत कुछ होता रहता है। कैसे हम बाबा की याद में व्यक्ति भी ठीक रहे, बात भी ठीक हो, और फिर सबसे बड़ी बात जो यज्ञ में विघ्न आ जाता है ना। हम्म, अभी देखो आज इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है, और दूसरी तरफ वही जो निमित्त है मीटिंग के, उनके सामने एक बड़ी बात भी है, उनका सारा। तो मैं कल उनको यही कह रही थी कि देखो बाबा ऐसे समय पर, जब आपकी बुद्धि बहुत समस्या की तरफ जा सकती है, यही बाबा की गिफ्ट है कि बाबा हमें बिजी रखता है, कि रियली टाइम ही नहीं उसका सोचने का। तो हम तो ऐसा समझते हैं कि चाहे किसी भी रूप में माया आए, लेकिन अगर जो आज भाई हमारी स्थिति है, चला डोला है, मैं सबको कहती हूँ क्या होगा। जैसे दादी गुलजार कहती थी, कोई भी बात आपसे बड़ी नहीं है, मनुष्य से बड़ी नहीं। तो ऐसे ऐसे दादियों की बातें याद आती हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि देखो सच तो सच है, उसको आप बदल भी नहीं सकते। और मैं अभी भी सोच रही हूँ कि कड़वा क्यों लगना चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत अनुभव नहीं है। इसलिए मैंने और उससे पूछती हूँ भाई आपको कैसा लगे। लेकिन जो तरीका है ना हमारा, जैसे हमारी मामा थी, वो पहले उसके 10 गुण सुनाती थी, फिर एंड में कहती थी देखो आप इस बात पे ध्यान देंगे ना, तो आप में सब गुण आ जाएंगे। तो कुछ हमारे प्रेरणादायक हमारा बोल हो, दृष्टि हो,
तो बेशक वो माया आ रही है, पर उसको रियलाइजेशन भी आएगी, और रियलाइजेशन आएगी तो चेंज आएगी। मैं तो सिर्फ यही देखती हूँ कि देखो अव्यक्ति परिवार में भी बहुत, यहाँ तो थोड़े ही बैठे हैं, सारे विश्व में सुनते हैं, तो सिर्फ मैं ये देखती हूँ कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। तो एक बार मनोहर दादी ने मुझे कहा, तुम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो लोगों से, सब आपकी तरह नहीं है। अगर आप सोचेंगे ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो अपने से भेंट कर रहे हो ना, तो कुछ नहीं होगा, आपको निराशा ही होगी कि मेरी जैसी सफाई नहीं करते, मैं जैसे कितना बढ़िया करता हूँ नहीं करते। वो कहती है नहीं करेंगे, फिर आप दुखी होते रहोगे, निराश होते रहोगे। तो आपकी अपनी योग्यताएं हैं, हर एक की अपनी है, उसको वैसा समझ करके काम भी वैसा ही दो। उनसे कईयों की स्पीड इतनी स्लो होती है जैसे बैटरी है ही नहीं और कईयों की इतनी इतनी स्पीड तेज होती है कि लगता है हाई बैटरी लगी। पर एक नॉर्मल है, ना बहुत तेज है ना स्लो है, पर एक्यूरेट है। तो इसलिए ये सब तो वैरायटी आत्माएं हम लोगों के साथ होती हैं। हंसी हंसी में रहो, खुश रहो, छोटी मोटी बात देखते हुए भी उसको खुशी से पार कर लो, तो संबंध अच्छे बने रहते हैं। और संबंध रिस्पेक्ट के बने रहे, वो बहुत जरूरी है। हम कहेंगे तो हमको जवाब तो मिलेगा ही, पर ऐसा हम किसी को चांस ही नहीं दें कि वो हमको इस तरह से बोल सके। मैं सबको ये कहती हूँ, जैसे आप बोलेंगे आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए बोलो मीठा तो सुनने को भी मीठा ही मिलेगा। नहीं, बहुत अच्छा लगता है दीदी जब आप यहाँ शांतिवन में होते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद आप अमेरिका चले जाते हैं, तो जब और आप चंडीगढ़ नहीं जाते? मैं भी तो कह सकती हूँ कि आप लोग आते हो सब चले ही जाते हो। पहले नीचे भाई साहब थे तो यही मुझे कहते थे, मैंने कहा भाई साहब आप तो हर 1.5 हफ्ते के बाद इधर चले गए उधर गए, तब तो आप ये कहते नहीं है मोहिनी बहन आप बैठिए हम जा रहे हैं। मैंने कहा आप भी जाते हैं हम भी जाते हैं। हाँ, ये तो जरूर होता है कि बैठे हैं तो अच्छा ही है, मन भी यही करता है, लेकिन अगर जब जहाँ जरूरत होती है वो भी करना होता है ना। नहीं, पर वहां से भी हमें ये खुराक और पालना मिलती रहती है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है, तो कनेक्टेड फील करते हैं। चल अगली बार आप भी चंडीगढ़ नहीं जाना, मैं भी दीदी जो हुक्म होगा वही करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, शांति। थैंक दीदी कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था उसका। सुनाई दे रहा है दीदी? यू। तो मैं चाहती हूँ कि अव्यक्ति परिवार भी वो जवाब सुने। आप पहले प्रश्न सुनाओ। हाँ तो मैंने दीदी से पूछा था कल कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता है कि कुछ बातें हमारे सामने हो रही है और राइट नहीं है। जैसे कुछ आत्माएं कुछ कर रही हैं और हमें पता है कि ये श्रीमत अनुसार नहीं है, मर्यादा अनुसार नहीं है। तो कुछ बातों को हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि जो आत्मा कर रही है वो कर रही है, ना हम उसको इंटरप्ट कर सकते हैं और ना हम उसमें कुछ कर सकते हैं। तो हम गुड विशेस देंगे और साक्षी हो जाएंगे, वही बाबा ने हमें सिखाया है। पर अगर कोई आत्मा कुछ ऐसा कर रही है पर हमारे थ्रू कर रही है, जैसे हमको कह रहे हैं कि आपको ये करना है और हमें पता है कि ये राइट नहीं है, बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं है, मर्यादा अनुसार नहीं है, तो मैं तो बीच में आई ना, तो मेरा तो कर्म बना ना।
तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? दीदी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था उसका, तो दीदी बताएंगे? बोलिए आप। दीदी ने मुझे बताया कि अगर आपका योग बल है तो कोई आपसे ऐसा कर्म नहीं करा सकते। मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन मैंने उस पर चिंतन भी किया और मैंने ये प्रैक्टिकल देखा भी है, दीदी में भी देखा है, आत्माओं में भी देखा है कि अगर उनका योग बल है तो कोई आत्मा किसी भी तरीके से उनसे कर्म ऐसा नहीं करा सकते हैं। और दूसरा दीदी ने बताया कि आप अड़ग दो रहो कि मुझे नहीं करना है, तो आप अपनी रीति से युक्त रास्ता निकाल ही लेंगे। तो मैंने ये बहुत अच्छा आंसर दीदी से कल। हमने मम्मा से सीखा। 1962 में मम्मा हमारे पास सेंटर पर आई थी, रॉयल सेंटर था, तो पब्लिक प्रोग्राम किया। तो हमने उस समय मतलब सबने बोला हम लोग अच्छे परिवार से आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो तो पिस्ते की बर्फी बनाओ। तो हमने कहा ठीक है हम बना देंगे। तो प्रोग्राम पूरा हो गया तो मम्मा ने मुझे कमरे में बुलाया, बोला कि किसकी राय से ये टोली बनाई। तो मैंने बताया कि फलाने ने कहा, ये कहा। बोला राय कोई भी दे, कर्म तो आपका है। तो जो कर्म करता है वो जिम्मेवार होता है, ना कि राय देने वाला। उस दिन से आज तक मैं राय सबसे लेती हूँ, पर फिर श्रीमत क्या कहती है, ये आत्मा मेरे से कुछ ऐसा कराना चाहती है जो मुझे पता है राइट नहीं लगता है। देखो लोग रिश्वत लेते हैं ना तो थ्रू ही लेते हैं, इसको दे दो इसको दे दो, और आता उनके पास। मैं कब हम क्यों करें ऐसा काम, कोई भी काम, यज्ञ की कोई भी वस्तु है, या अभी हम रोक नहीं सकते करने वाले, उनके पास अपने तरह की अथॉरिटी है, पर वो हमें नहीं यूज कर सकते। तो बहुत ध्यान तो रखना है। कर्म तो मैंने किया ना। हाँ, किसी ने कहा कि एक बात चली थी कि हत्या इसके करनी है आपको इतना देंगे, तो कहा तो किसी ने, पर जिसने किया कोर्ट में तो हो जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा कोई ऐसा काम नहीं कराए, हम किसी प्रभाव से, किसी डर से, किस कारण से वो गलत करते जा रहे हैं, वो तो ठीक करना ही चाहिए। तो इसलिए मैं इनको बता रही थी, हम छोटे थे, थोड़े पढ़े लिखे थे, तो कई छोटे छोटे ग्रुप बन जाते। वो आके मुझे कहते थे आप चेयरपर्सन बनो। तो मैं बाबा को कहती थी बाबा ये लोग, बाबा ने कहा बहुत अच्छा है ना तुम करो। मैंने कहा नहीं। उनको मैं कहती थी मेरे पास फिर नहीं आना, मेरे लिए यज्ञ ही सब कुछ है। मैं कभी आप लोगों का साथ नहीं दे सकती, ना मैं टाइम दे सकती हूँ। चेयरपर्सन तो क्या, मुझे कोई भी पोजीशन दो, मुझे नहीं लेनी। तो हमें शुरू से अपनी लाइफ को इतना क्लीन रखना है कि मैं यज्ञ की हूँ, यज्ञ के लिए कोई मेरे नजदीक वाला मुझे राय दे। हाँ, कई मुझे कहते थे आप इतना लाते हो, ये ले जाओ ये। मैंने कहा इसलिए थोड़ी करते हैं यज्ञ में कि ले जाएं हम यज्ञ से। तो हम कभी नहीं मानते थे, जो बात राइट है जैसी है, क्योंकि अपनी लाइफ की बात है ना ये तो भूमि को ये बहुत होता है कि कई लोग चाहते नहीं है, पर वो उस चक्कर में है जो गलत करते रहते हैं, उनको हम मैंने कहा मैं तो सबको सुनाई ही देती कि वो अपने को संभाल सके, और तो क्या कर सके, क्योंकि वो नहीं समझ थी जब किया होगा। फिर एक फंस जाता है ना, बंधन बन जाता है। अच्छा, आजकल देर हो जाती है। शांति, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक्स आपका। आपको जब कभी भी ट्रेनिंग चाहिए होगा ना तो अनीता बहन आएगी। ये ट्रेनिंग कराते हैं ना करना।